Assalamualaikum everyone, and today we are going to discuss about another topic of operating system, which is fundamental task process management. That how do we manage the processes? What type of activities are managed by the process management module, and what type of operations or activities should be handled by the operating system. So, first of all, when we talk about the requirements of operating system, तो उसमें fundamental task हमारा ये होता है कि आपका process कैसे manage हो रहा है. As we have discussed earlier, what is the process? Process is called the program in execution, means our executable program, or simply you can say that the running job, the running activity, the running task is called the program. So operating system must interleave the execution of multiple processes, allocate the resources to the process, and protect the resources of each process from other process. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो वन आफ्टर एन अदर जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. देन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम एलोकेट करते हैं प्रोसेस को. अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मीन्स आवर मेमोरी, आवर डिस्क, these are all the resources. And what we have to do, this is the responsibility of operating system, that it manage the resources, that कि आपके वो रैम को मैनेज करेगा, प्रोसेसर को, हार्ड डिस्क को, और आपके बाकी के आईओ चैनल्स को. और वो रिसोर्सेज की एलोकेशन भी इस तरह से करेगा कि अगर आप एक प्रोसेस को एक रिसोर्स मिल गया है तो वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस को एलोकेट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती. उसके बाद है कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो शेयर एंड एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर एंड एक्सचेंज करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी एड्रेसेस हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई फंक्शंस हैं, तो उनको शेयर और एक्सचेंज करेगा. देन इट enables द सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेस. सिंक्रोनाइजेशन की जो पॉइंट है या जो टर्म है उसको कहा जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी. आईपीसी का मतलब ये होता है कि आपके प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वो फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को शेयर कर सकें, वो फंक्शंस को भी शेयर कर सकें. ठीक है. Then we have got the concepts from earlier chapter that we have a computer platform that consists of the collection of the hardware resources, computer applications, those are developed to perform some task. So it is inefficient for applications to be written directly for a given hardware platform. Then we come towards the operating system which provides an interface for applications to use, क्योंकि ये हमें APIs भी provide करता है जिसको कहा जाता है Application Programming Interface. Operating system provides a representation of resources that can be requested and accessed by application. वो उन तमाम resources जो कि request होती हैं या access होती हैं किसी भी application से, वो उनको जो है वो services भी provide करता है. So operating system manages the execution of applications जिसमें हमारे पास resources हैं are made available to the multiple applications. Processor is switched among the multiple applications. The processor and IO devices can be used efficiently. ठीक है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को देते हैं, और प्रोसेसर जो है वो उन मल्टीपल एप्लीकेशंस में स्विचिंग करता है. प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली. ठीक है, कि उन प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस को हम एफिशिएंटली जो है वो यूज भी कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज द व्हाट इज द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, an instance of a program running on the computer, the entity that can be assigned to and executed on the processor, a unit of activity characterized by the execution of the sequence of instructions, जो कि हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं. साथ साथ उसकी स्टेट. स्टेट का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा, या किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉक है, सस्पेंड है, तो उसकी स्टेट को कहा जाता है. स्टेट का मतलब है कि आपका एक प्रोसेस जो है इस वक्त कौन सी कंडीशन में है. ठीक है.
उसके साथ साथ हमारे पास एसोसिएटेड सेट ऑफ सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो कि हर प्रोग्राम या हर प्रोसेस की सेपरेट होती हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उसकी एक प्रोसेस जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे प्रोसेस बना हुआ होता है। सबसे पहली चीज है प्रोग्राम का कोड। ठीक है। जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको कोड कहा जाता है। उसके बाद उसका डेटा। डेटा का मतलब है जो हम वेरिएबल्स की वैल्यूज असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा। थर्ड जो है वो है हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट्स। ठीक है। कि हमारे पास कौन सी उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? अब एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। दोज आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज जो कि इसको डिस्क्राइब करती हैं, स्टेट्स, किसी भी प्रोसेस की स्टेट को। ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। तो आपके पास तीन चीजें होंगी। पहली चीज प्रोग्राम का कोड, उसके बाद उसका डेटा, उसके बाद उसकी एट्रीब्यूट। तो ये इसके तीनों जो हैं ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। पहली चीज प्रोग्राम, दूसरी चीज डेटा, और तीसरी चीज उसकी एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। अब प्रोसेस एट्रीब्यूट में मल्टीपल चीजें हैं, वो ग्रेजुअली हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। आपकी जो बेस है प्रोसेस की वो तीन चीजों से है। वो एक आपका प्रोग्राम हो गया, मतलब आपका कोड, उसके बाद आपका डेटा हो गया, और थर्ड है उसकी एट्रीब्यूट्स। सो अगर आपसे ये पूछा जाए what are the elements of the process, you can simply say that including the code, number one, number two, data, and number three, attributes. ठीक है। ओके। अब प्रोसेस एलिमेंट्स को हम मज़ीद एक्सप्लोर इस तरह से कर सकते हैं कि हम अगर उसके एलिमेंट्स को इन डिटेल देखें तो ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द आईडी, आइडेंटिफायर, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या है? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, हर प्रोग्राम की ना एक स्पेसिफिक आईडी होती है। ठीक है। ओके। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हूँ कि आईडी को, ताकि मैं आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि आईडी का क्या मतलब होता है। ठीक है। अब मैं आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाती हूँ। ओपनिंग द टास्क मैनेजर। अच्छा, टास्क मैनेजर में क्या होता है कि आपके तमाम जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन तमाम जो उनकी इंस्ट्रक्शंस कह लें, आपकी जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो सबको शो करता है। तो हम इस वक्त टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपके ना प्रोसेस के आईडी सारे आ रहे होंगे। इस वक्त आपके प्रोसेसेस जो हैं वो कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। जस्ट लाइक दिस। अभी देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस दिखा रहा है कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क कितना यूज हो रहा है। ठीक है। और ये आपके जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं ना, जो सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये उनको भी शो कर रहा है। ठीक है। अब ये आपकी डिटेल्स आ गई। ठीक है। अब डिटेल्स में देखें, इस वक्त जितने भी प्रोग्राम बैकएंड पे और फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो उन तमाम प्रोग्राम्स को शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी थी, दैट वाज द आईडी। ठीक है। ये देखें, ये आपके पास प्रोसेस का आईडी है जो इस वक्त शो हो रहे हैं। हर प्रोग्राम का ना है प्रोसेस का एक सेपरेट यूनिक आईडी है इस वक्त यहाँ पे। अब साथ ही उसका स्टेट का मतलब, स्टेटस का मतलब होता है स्टेट, कि इस वक्त प्रोग्राम आपका कौन सी स्टेट में। अब यहाँ पे देखिए ना, ये रनिंग स्टेट में है सारे। यहाँ पे ये देखिए, ये सस्पेंड है। ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से ये सस्पेंड हो गया। अब बाकी देखिए, ये सारे रनिंग स्टेट में हैं। ये आपके पास यूजर का नेम हो गया कि आपके प्रोग्राम यूजर सिस्टम के हैं या आपके यूजर के हैं। ये साथ में सीपीयू का स्टेटस दिखा रहा है। ये आपके साथ में मेमोरी का स्टेटस दिखा रहा है। ये उसका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर वो 86 पे काम कर रहा है, 64 पे काम कर रहा है। ये आपकी सारी डिस्क्रिप्शंस दिखा रहा है कि ये आपकी प्रोसेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्रोग्राम है वो उसका तमाम स्टेटस जो है वो शो करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द टास्क
मैनेजर, ठीक है। और टास्क मैनेजर में आपका ये सारी चीजें शो दिखा रहा था। अभी हमने देखा प्रोसेस की आईडी भी दिखा रहा है, स्टेट भी दिखा रहा था। स्टेट का मतलब स्टेटस वो रनिंग में था, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी प्रियोरिटी। प्रियोरिटी शायद हमने पहले कहीं डिस्कस की है। समटाइम ऐसा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना आपके प्रोग्राम की प्रोसेसेस की ना प्रियोरिटी भी सेट करता है। अब प्रोग्राम या प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेट करने का क्या मतलब होता है? प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम्स को किस सीक्वेंस से और किस इंपॉर्टेंस से डील करते हैं। हम प्रायोरिटीज ना दो तरह से सेट करते हैं, एक होते हैं हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और एक होते हैं लो प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, उनको हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस कहा जाता है। और वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन कर्नल हो गया, मॉनिटर हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लो प्रायोरिटी की तरफ। हमने बात की कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस भी होते हैं। अब लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास यूजर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। यूजर प्रोग्राम मीन्स जो आपके यूजर के प्रोग्राम हैं। यूजर प्रोग्राम्स मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस वक्त पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, ये हमारा यूजर प्रोग्राम है। और अगर इस टाइम पे बैकएंड में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हमारा सिस्टम का प्रोग्राम है। अब जो सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है, जबकि हमारे प्रोग्राम्स की प्रायोरिटी लो है, बट स्टिल वो दोनों को ही एग्जीक्यूट करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। हम पहले इससे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं जी। हमारे पास प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं आपके जिसको कहा जाता है पीसी, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली वैसे तो ये एक रजिस्टर है, ठीक है। पीसी जिसको कहा जाता है विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर। अब जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है डेफिनेटली उसका एक एड्रेस होगा एंड दैट एड्रेस इज गोइंग टू होल्ड इन द प्रोग्राम काउंटर। देन वी कम टुवर्ड्स द मेमोरी पॉइंटर्स। मेमोरी पॉइंटर्स क्या होते हैं? जिनको आप कहते हैं कि आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी पॉइंटर्स हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि इस वक्त आपका प्रोग्राम कौन सी मेमोरी लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डेटा है, आपके डेटा का क्या कॉन्टेक्स्ट आएगा। फिर आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन है। कॉन्टेक्स्ट डेटा का मतलब होता है इस वक्त आपका प्रोग्राम कहाँ मौजूद है, उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी अपने पास जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है। उसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, ओके। उसके बाद हमारे पास है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं या आईओ चैनल्स हैं उसका तमाम स्टेटस की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास कंटेन करेगा। फिर हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द डिवाइसेस जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, उन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं या आपकी डिवाइसेस वगैरह हैं, चैनल्स हैं, उन तमाम आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, आपके प्रोग्राम या प्रोसेसेस हैं, उन सब का स्टेटस अपने पास रखेगा किसमें? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसको कहा जाता है जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, इन एलिमेंट्स को हम एक पूरा इस इन एलिमेंट्स का ना एक ब्लॉक बना देते हैं और हम उस ब्लॉक को कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, ठीक है। पीसीबी कंटेन्स द प्रोसेस एलिमेंट्स। जो हमने इन डिटेल सारे प्रोसेस के एलिमेंट्स पढ़े हैं इनको पीसीबी कहा जाता है। और इसको कौन क्रिएट और मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट और मैनेज करता है। इसके अलावा ये अलाउ करता है सपोर्ट फॉर द मल्टीपल प्रोसेसेस। अब पीसीबी में हमारे पास एक है आइडेंटिफायर, देन है स्टेट, देन है प्रियोरिटी, फिर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर आ जाता है, फिर मेमोरी पॉइंटर्स आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट डेटा आ जाता है, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन आ जाती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमने पीसीबी के एलिमेंट्स अभी प्रीवियसली पढ़े हैं। अब हम इन सब एलिमेंट्स को पैक करके एक ब्लॉक बना देते हैं और उसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगर आपसे पूछा जाए what is the PCB, so we will simply say that PCB is a block which contain in all the process elements and it is managed and created by the operating system and it allows the support for the multiple process। हर प्रोग्राम का अलग से PCB मेंटेन होगा।
And PCP will contain all the information including the identifier, state, priority, program counter, memory pointers, context data, IO का क्या स्टेटस है, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें पीसीबी में मौजूद होंगी। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द ट्रेस ऑफ द प्रोसेस। अब ट्रेस क्या है? अब देखिए, जब एक प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका क्या बिहेवियर होगा किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस का, इस उसकी जो लिस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग होगी, लिस्टिंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड, जो भी पूरी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है या पूरी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रेस। उसमें क्या होता है? डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर क्या है? आप देखें, आपके पास 100 इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? ट्रेस। अब उसमें डिस्पैचर आता है। डिस्पैचर क्या है? डिस्पैचर इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच स्विचेस द प्रोसेसर फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर। वो क्या करता है? डिस्पैचर का एक काम ये क्या होता है कि डिस्पैचर एक प्रोग्राम ही है, जितने भी कंट्रोलर हैं, हैंडलर्स हैं, इंटरप्ट हैंडलर्स हैं, डिस्पैचर्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स ही हैं। ठीक है। सो डिस्पैचर इज द स्मॉल प्रोग्राम विच स्विचेस द प्रोसेसर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से दूसरे में वो उसको डिस्पैच करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या चीज है? मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के स्टार्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको डिस्पैचर कहा जाता है। और डिस्पैचर में स्टार्ट में जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है? डिस्पैचर है। ठीक है। डिस्पैचर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करती हैं कि आपका जो सिस्टम इन प्रोग्राम मतलब आपका सिस्टम इन प्रोग्राम्स को जब एग्जीक्यूट करता है ना, तो उसका कंट्रोल उसको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम ए जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5000 से फर्दर अप्रोक्सीमेटली 7000 तक। आपका प्रोग्राम बी जो है वो 8000 से स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है? 12000। फिर आपका प्रोग्राम सी है वो 12000 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है? अप टू सो ऑन फर्दर जा रहा है। तो ये इसका कंप्लीट ना एक प्रोग्राम की नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बता रहा है। अब देखिए, 5000 से 7000 है अप्रोक्सीमेटली, तो प्रोग्राम एक ही टोटल 2000 इंस्ट्रक्शन इस वक्त सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही है। और वो 2000 इंस्ट्रक्शन सारी कहाँ पे लोड है? वो सारी मेन मेमोरी के अंदर लोड है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस बी की अगर हम बात करें, तो वो 8000 से 12000 तक सिस्टम में लोडेड है। इसी तरह से प्रोग्राम सी है तो वो भी इसी तरह से लोडेड है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आप प्रोसेसेस जो है वो तीन प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको इस तरह से हम देखते हैं कि सारे प्रोग्राम्स साथ साथ उसका डिस्पैचर सारे कहाँ पे हैं? मेन मेमोरी में या मेमोरी में है। हम विजुअल मेमोरी को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको विजुअल मेमोरी को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है। ओके। अब ये आपके प्रोग्राम्स जो मेन मेमोरी के अंदर लोडेड हैं, ठीक है, वो सारे आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं और आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेस की, जो हमने अभी बताया कि ट्रेस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेस। ट्रेस ऑफ द प्रोसेस ए बी एंड सी की शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस दिखाया है रैम में, एक दफ़ा दोबारा डायग्राम को देख लें कि आपके पास 5000 से प्रोग्राम ए स्टार्ट हो रहा है, 8000 से प्रोग्राम बी स्टार्ट हो रहा है और 12000 से प्रोग्राम सी स्टार्ट हो रहा है। ये इसके ना एड्रेसेस रेंज है, ये मेमोरी एड्रेसेस की क्या रेंजेस हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस वक्त प्रोग्राम्स की स्टेटस दिखा रहा है 5000 स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम ए, 8000 स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम बी, 12000 इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम सी। अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी ट्रेसेस दिखा रहा है। ट्रेसेस का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो उसको रैम में लोड करके दिखा रहा है। ठीक है। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं उसकी कंप्लीट ट्रेसेस दिखा रहा है। सो दिस इज द ट्रेस। ठीक है। ट्रेस इज बेसिकली द लिस्ट। ठीक है। जो क्या होती है? वो एक कंप्लीट लिस्ट होती है। अब देखिए, ये प्रोग्राम ए की जो है वो कंप्लीट लिस्ट बन गई। इस तरह से ये प्रोग्राम बी है उसकी कंप्लीट लिस्ट बन गई, ये प्रोग्राम सी है उसकी कंप्लीट लिस्ट बन गई। ठीक है। ये एक ही ट्रेसेस हैं।
अब ट्रेसिस बता रहा है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके एड्रेसेस क्या है, वो सबको लोड कर रहा है। ठीक है। अब लोड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ये है, दिस इज द एनिमेटेड डायग्राम। इसमें ना आपका सबसे देखें टॉप पे क्या लोड है, यहाँ डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके प्रोसेसर को डिस्पैच करेगा ए, बी और सी में। इस वक्त हम इस शो कर रहे हैं कि हमारे पास तीन ही प्रोग्राम्स हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब इसमें देखिए सबसे पहले प्रोग्राम ए जो है एग्जीक्यूट हुआ, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस डिस्पैचर के पास गया। फिर किसी भी रीजन की वजह से आपके प्रोग्राम में ना टाइम आउट होता है। अब टाइम आउट का क्या मतलब है? तो टाइम आउट इज द प्रोसेसर टाइम आउट। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 8 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करता है, तो वो जितनी देर के लिए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो इंस्ट्रक्शंस लोड होंगी, उसके बाद आपके प्रोसेसर का टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट के बाद वो अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, वो आपकी इंस्ट्रक्शन की ट्रेसेस को दिखा रहा है, टाइम आउट को भी दिखा रहा है, आईओ रिक्वेस्ट की वजह से भी हो सकता है, दरमियान में किसी भी रीजन की वजह से आईओ रिक्वेस्ट टाइम आउट आया तो वो सबको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। लेट्स सी इट अगेन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दी। देखिए प्रोसेस ए लोड हुआ, टाइम आउट हुआ, फिर डिस्पैचर के पास कंट्रोल वापस किया, प्रोसेस बी लोड हुआ, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट हुआ, फिर आईओ रिक्वेस्ट आ गई, आईओ रिक्वेस्ट की वजह से वो दोबारा वापस डिस्पैचर के पास चला गया। फिर टाइम आउट हुआ, सी के कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर अगेन कंट्रोल आपका जो एरो साइन है डिस्पैचर के पास गया। फिर उसने ना, अब देखें ए, बी एंड सी को एग्जीक्यूट करने के बाद वो दोबारा ए पे रिटर्न करेगा, फिर वापस बी पे आएगा, फिर सी पे आएगा, मतलब एक सीक्वेंस के साथ ए, बी एंड सी की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ओके, आगे है हमारे पास प्रोसेस की स्टेट्स। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे प्रोसेस की, अभी मैंने आपको स्टेटस दिखाया, स्टेटस का मतलब होता था स्टेट्स। आपके प्रोग्राम की जो सबसे बेसिक जो है वो जो एग्जीक्यूट होती हैं, वो दो स्टेट्स में एग्जीक्यूट होता है। एक ये स्टेट है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरी स्टेट ये है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है। इट मीन्स दैट रनिंग एंड नॉट रनिंग। अब देखें यहाँ पे आपका सिस्टम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए सिस्टम में एंटर हुआ, यहाँ से वो नॉट रनिंग में गया, मतलब आप इस वक्त आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, डिस्पैचर डिस्पैच करेगा। अब डिस्पैच का मतलब क्या होता है? ये डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर प्रोसेसर असाइन करता है किसको? प्रोसेस को। जब आपका प्रोसेसर डिस्पैच हो जाता है तो आपका नॉट रनिंग प्रोग्राम किस स्टेट में आ जाता है? रनिंग प्रोग्राम में। फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से उसमें ब्रेक आ जाता है या पॉज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल कोई आईओ चैनल उसको चाहिए था, या उसका प्रोसेसर टाइम एक्सपायर हो गया, 8 सेकंड के बाद उसने फॉर एग्जांपल रुक जाना है, तो जब वो पॉज होगा तो रनिंग से दोबारा वापस किस में स्टेट में आ जाएगा? नॉट रनिंग में। ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम एक ही डिस्पैच में एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो सिंपली रनिंग से एग्जिट की तरफ चला जाएगा। रनिंग से वापस नॉट रनिंग में कब आएगा? जब आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी रहता होगा। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा वापस? नॉट रनिंग में। क्लियर? तो ये दो स्टेट्स हैं आपके। इस पर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, प्रोसेसर असाइन हुआ तो वो रनिंग में आ जाता है, अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो वो एग्जिट हो जाता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से, जैसे हमने अभी देखा, टाइम आउट हो गया या कोई आईओ चैनल असाइन होना था, वे किसी भी रीजन की वजह से आपका प्रोग्राम रुक जाता है, तो आपका प्रोग्राम रनिंग से वापस किस में आएगा? नॉट रनिंग। ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक स्टेट्स जो आपके सिस्टम में प्रोसेसेस को वो एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? लेट्स कम टूवर्ड्स अनदर डायग्राम। ये है क्यूइंग डायग्राम। हमने कहा था कि हम शुरू से ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक उसका फंडामेंटल एलिमेंट है। हम स्टैक्स यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, हम क्यूज यूज करते हैं।
तो क्यू का क्या काम है? क्यू इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपके तमाम प्रोग्राम्स जो कि एंटर होते हैं दोज कम्स टू द क्यू। आपका प्रोसेसर क्यूज में से प्रोसेसेस को लेता है, एग्जीक्यूट करता है, डिस्पैच करता है और प्रोसेसर को असाइन करता है और उसके बाद एग्जिट हो जाता है। अब आपका प्रोग्राम इस वक्त सिस्टम में, आपके प्रोग्राम्स क्यू में एंटर हुए, डिस्पैच हुए और प्रोसेसर को असाइन हुए, उसके बाद क्या हो गए? एग्जिट हो गए। ठीक है। अब ये एक आपकी क्यूइंग डायग्राम है जो कि क्या कर रहा है? देखिए, प्रोसेसर्स को डिस्पैच कर रहा है। अब इसको सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ एंड इट्स कमिंग बैक टू द क्यू। व्हाई इट इज कमिंग बैक टू द क्यू? के डिस्पैचर उसका फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर उसका प्रोसेसिंग टाइम अभी रहता था तो वो दोबारा क्यू में प्लेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस की जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती वो तब तक उसको एग्जीक्यूट किए रखेगा। ठीक है, उसको डिस्पैच किए रखेगा कि उसको बार बार प्रोसेसर जो है वो असाइन करेगा until and unless आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। So process moved by the dispatcher of the OS to the CPU, then back to the queue until the task is completed। ठीक है। हमारे पास ये दो चीजें हैं, प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। देखिए, दो चीजें हैं जो शुरू से हम बात करते हैं, हम यहीं पे बात ऐड करें और इसी को दोबारा से हम नेक्स्ट लेक्चर में रिज्यूम करेंगे कि हमारे पास प्रोसेस क्रिएट होते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं। एक तो नॉर्मल सिनेरियो है कि आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ, मींस आपके प्रोसेस में जो है आपका न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ, फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद खत्म हो गया। ठीक है, उसको टर्मिनेशन कहते हैं। फिर हमारे पास दो दो टैबुलर फॉर्म में चीजें दी हुई हैं कि क्रिएशन क्यों होती है और टर्मिनेशन क्यों होती है। पहली बात, क्रिएशन का मतलब है कि न्यू बैच जॉब और टर्मिनेशन का मतलब है कि नॉर्मल कंप्लीशन हो गई है। क्रिएशन में हमारे पास इंटरैक्टिव लॉगिन है और टर्मिनेशन में मेमोरी अनअवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी लॉगिन सिस्टम में हम लॉगिन करते हैं, हमारा एक सेशन क्रिएट होता है तो हम इसको कहते हैं प्रोसेस की क्रिएशन। और जब हमारी मेमोरी अनअवेलेबल हो जाती है इसको कहते हैं टर्मिनेशन। उसके बाद क्रिएटेड बाय द ओएस टू प्रोवाइड अ सर्विस, ये भी क्रिएशन है। अगर टर्मिनेट होता है इसका मतलब है प्रोटेक्शन एरर है। फिर हम क्रिएशन की बात करेंगे, दिस इज स्पॉन्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको कोई स्पॉनिंग होती है तो उसको क्रिएशन कहा जाता है। और डोमिनेशन में ये होता है कि ऑपरेटर आर द ओएस इंटरवेंशन, कि किसी भी रीजन की वजह से आपका प्रोग्राम या आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब क्रिएशन की भी रीजंस हैं और टर्मिनेशन की भी हमारे पास रीजंस हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो दोबारा से रिज्यूम करेंगे और इससे इसी ही पॉइंट से हम बाद में अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है।